and then we can start right with the session. I think meanwhile, if our CEO is here, which is Gail Sylvia Pullen, she can go ahead and discuss and introduce Girls 5 Pakistan with you meantime, and then we can start with the presentation itself. Hello, everyone. It really is exciting to see all of you here today, tonight, your time. I'm here in Ohio in the United States, originally from Southern California. And the value of exchange programs, study abroad programs, student scholarship programs will impact your life forever. And I'm a perfect example of that. My first study abroad program was in high school to Switzerland, and then in college to Waseda Daigaku in Tokyo, then eventually in the Peace Corps, then eventually Girls Fly all over the world. And you have an amazing team in Pakistan that put this together with the hope that you'll benefit from it. I'd like to express a special thank you to our guest today, Nasir Hussain. Thank you so much for being here. We appreciate that you're willing to share your knowledge and expertise with everyone tonight. So thank you and enjoy the session and follow us and stay engaged. And also one more thing, I want to welcome back all of you that have been joining us for each of these speaker series. There's so much more to come. I hope you're benefiting from it. Good night. Thank you so much, Ms. Gale, for the grateful introduction. We will be waiting for 2 minutes more for the audience to join. Then we will go ahead, stay connected. Recording in progress.
Assalamualaikum everyone. Good evening everyone. Welcome to today's session regarding Stern Student Student Program. We are delighted to have you all join us today from all parts of the Pakistan. And today's guest is Nasir Hussain. He's a recent graduate from Quaid Azam University, Islamabad, and he has been graduated in computer science. And apart from his formal education, he has been a summer software intern at National Center of Physics, and also how I know him is through Google Developer Student Club lead. He was a GDSC lead from QAU, and now he is a summer student intern in Geneva, Switzerland, and he will be sharing his experience, like how he got that internship and like how our students from Pakistan can grab that opportunity. So over to you, Nasir. Thank you so much for today's session. थैंक यू सो मच आयशा। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? Yeah, it's clear. ओके, थैंक यू। आई होप मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी। Yeah, it's visible. Okay, thank you so much. So thank you so much for introducing me. So my name is Nasir Hussain and I'm a second summer student 2024। और इससे पहले ये कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के लीड थे काज़िम यूनिवर्सिटी में, और आई एम एन ग्रेजुएट स्टूडेंट एट काज़िम यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो बेसिकली आज का एजेंडा ये है कि पहले मैं इंट्रोडक्शंस तो बेसिकली थैंक यू आयशा आपने कर दी के बाद सर इंट्रोडक्शन से, इसके अलावा फिर स्टूडेंट प्रोग्राम है। स्टूडेंट प्रोग्राम में जितने भी हमारे पास स्टैंड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम देखेंगे। एंड देन एप्लीकेशन प्रोसीजर बेसिकली जो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम है उनके लिए सेम होती है, और कुछ इंटर्नशिप गाइडलाइंस और टिप्स है जो कि मैंने यूज़ किया है, तो उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट प्रोग्राम यहाँ पे है उसके बेनिफिट्स और लाइफ एक्सटेंड, एंड देन हम जो आपके क्वेश्चन है उस पर भी आंसर करेंगे। सो बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया। तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि सेंट बेसिकली हमारे पास है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, और इसमें बेसिकली जैसे ही नाम सुनते तो आपके जहन में ये आता होगा कि शायद ये सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड या न्यूक्लियर रिसर्च है, तो इसमें बाकी स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप जो है वो कंप्यूटर साइंस से लेकर हर फील्ड के लिए भी हम अभी आगे ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि कौन कौन से जो डिसिप्लिन है उसके स्टूडेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं। तो इट इज़ बेस्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, एस्टेब्लिश इन 1954। इसके 23 मेंबर स्टेट है जो कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है, और पाकिस्तान हमारे पास इसमें एफिलेटेड मेंबर स्टेट है, और इसको बताने का मकसद अभी आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो इसके अलावा बाकी दो पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड एट स्टर्न बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1989। इसके अलावा नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स में 3 साल जो है वो नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू अबाउट द नेचर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन की आप किस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कितना सीरियसनेस होना पड़ेगा और कितना हाईली कॉम्पिटिटिव है इसका अंदाज़ा आपको हो जाए। और बेसिकली जो स्टैंड का मिशन है वो यही है कि परफॉर्म वर्ल्ड क्लास रिसर्च इन फंडामेंटल फिजिक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट फिजिक्स के हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बाकी जो भी हमारे पास डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पास BBA होता है, इसके अलावा जितने भी डिसिप्लिन है उसके लिए जो भी यहाँ पे हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उन सबको मैंने इसमें मैंशन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डॉक्टरल स्टूडेंट प्रोग्राम है, ठीक है। फिर सर मेरी क्यूरी PhD पोजीशंस है। ये तो हमारे पास जो है वो आफ्टर MS के बाद आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे। तो जो 3 से लेकर 6 तक हमारे पास जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें टेक्निकल स्टूडेंट्स प्रोग्राम आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट प्रोग्राम है, समर स्टूडेंट प्रोग्राम है जिसका मैं पार्ट हूँ, इसके अलावा ओपन लैब समर स्टूडेंट प्रोग्राम है, और लास्ट में हमारे पास शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। तो इसको हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि आप इसमें क्या, इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है, और मतलब कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह वो सब कुछ क्या है, किस तरह से है। तो सबसे पहले अगर मेरी क्यूरी PhD पोजीशन देखें तो इसमें हमारे पास यही है कि MS और MSc स्टूडेंट्स होना चाहिए और PhD में इन्वॉल्व नहीं हो। और इसके अलावा हमारे पास ये है कि जो इसमें डिसिप्लिन आते हैं, हमारे पास फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट्स है, MS और MSc है, अगर वो PhD पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप ट्राई कर सकते हैं।
और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली हमारे पास 6 मंथ तक होती है कि आप 6 मंथ तक जो है वो यहाँ पे जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम है। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से है कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं या अप्लाइड फिजिक्स और इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग, अब बेसिकली ये हमारे पास मेजर फील्ड्स है। इसके अंदर आप सब कैटेगरीज भी देख सकते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, फिर जनरल सिविल इंजीनियरिंग है, आईटी मैथमेटिक्स एंड रोबोटिक्स। तो ये सारे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम है। इसका जो स्टूडेंट्स होना चाहिए वो बैचलर और मास्टर के हैं, और इसके ड्यूरेशन हमारे पास 4 to 12 मंथ है। यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप यहाँ पे 4 से 1 साल तक जो है वो 4 मंथ to 1 ईयर तक आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि 80 स्टूडेंट्स जो है वो एनुअली सिलेक्ट होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसका जो है हाईली कम्पिटिटिव है, और इसका अलाउंस जो है वो 3 4 5 2 स्विस बैंक है जो आपको पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, जो कि मोर देन इनफ है कि आप इसमें अच्छा खासा यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। तो इसका डेडलाइन अभी तो गुजर चुका है फॉर 2024, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए ये होगा कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर एप्लीकेशन जो है वो दोबारा ओपन हो जाएंगे, और 29 जुलाई तक जो है वो या कि अगले साल के शुरू में जो है वो बेसिकली ओपन हो जाएंगी, और उसके बाद 29 जुलाई तक बेसिकली ये रहेगा। अभी मैं आपको ये सिर्फ आइडिया देने के लिए कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अभी विंटर आने वाले तो पोजीशंस ओपन नहीं होते, जबकि न्यू एप्लीकेशन ओपन होते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकल स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे सिर्फ 80 स्टूडेंट्स का बताने का मकसद ये नहीं है कि आप डिस्करेज हो जाएं और आप इसमें अप्लाई ना करें कि इसमें तो एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम है। आप ही वो स्टूडेंट हो सकते हैं कि जो इन टॉप 80 स्टूडेंट्स में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने कभी नहीं देखना कि अगर एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम है तो आप अप्लाई ना करें। जो अप्लाई करेंगे जाहिर सी बात है उन्हीं में भी शॉर्ट लिस्ट होंगे और वही लोग सिलेक्ट होंगे। तो मतलब आप इस चीज़ में कोशिश करें कि आप उन 80% स्टूडेंट्स में सिलेक्ट होना, कि इसको देख के ही आप जो है वो साइड पर हो जाएं कि नहीं इसमें सिर्फ 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम है, हम इसमें अप्लाई नहीं करें। तो एक ही मेन चीज़ होती है कि आप एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करें, कीप अप्लाइंग, यानी कि जो भी आपको इंटर्नशिप सूट करती है, इंटरेस्ट का मैच करती है, उसमें आप अप्लाई करें। और इसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान में जो आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग जो है वो बेसिकली इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट के लिए है। इसमें भी हमारे पास जो है वो 2 to 12 मंथ है। लेकिन अगर आप जो है अगर प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंशन चाहे तो 2 more month आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। तो बुलेट पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जितने भी देख सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अब शुरू मैंने वही बताया कि ये एक मेजर फील्ड है, उसके सब कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कि अगर पब्लिक रिलेशंस इवन हमारे यहाँ होती है, कम्युनिकेशंस है, साइकोलॉजी इवन है जो कि हमारे पास सोशल साइंस में आती है। तो इनमें अगर किसी फील्ड में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये भी यही है कि इसमें अभी तक ये लोग कम स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सो नेक्स्ट ईयर ये लोग शायद इस नंबर को इंक्रीज कर देता है। अभी तक जो है वो एनुअली जो है वो 50 स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट करते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए कि आप जो है वो एटलीस्ट 18 मंथ आपके अंडर ग्रेजुएट स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो चुके हों, जो कि मतलब ये है कि आप फाइनल ईयर में हो इस टाइम पे, जब जिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो तब तब आप आपके जो है वो 6 सेमेस्टर जो है वो हो चुके हों। इसमें यही है कि अलाउंस हमारे पास फिर वही है, तकरीबन इसमें मोर देन इनफ है, और ट्रैवल अलाउंस आपको मिल जाती है। और इसकी भी जो डेडलाइन है वो 29 जुलाई होती है, वो जो कि नेक्स्ट ईयर की होगी। और इसकी जो ओपनिंग होगी वो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आई गेस होगी, और 29 जुलाई तक इसकी डेडलाइन होती है। उसके बाद हमारे पास जो आती है समर स्टूडेंट प्रोग्राम, इसमें यही है कि हमारे पास बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट्स है। इसमें हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज है वही है फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स है। इसमें भी यही चीज़ है कि आपके जो है एटलीस्ट 6 सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हों। और इसमें जो ड्यूरेशन है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपॉर्चुनिटीज में आप सिर्फ 8 to 13 वीक्स है। अब जैसे कि आपको बताया था कि एफिलिएटेड मेंबर स्टेट्स है पाकिस्तान, तो इसमें आप जो है वो इस ड्यूरेशन में किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम जून टू सितंबर तक ये साइकिल होता है, उसमें आप किसी भी ड्यूरेशन में जो 8 वीक आपकी मतलब सेमेस्टर ब्रेक हो या आपका समर वेकेशन को इस तरह से चल रहा हो, तो उसमें आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपकी स्टडी भी इफेक्ट नहीं होगी और आप इस इंटर्नशिप को भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो मोस्टली साल के एंड में ओपन होती है, और 31 जनवरी तक जो है
इसकी डेडलाइन होती है। इसमें हमारे पास जो है वो डेली अलाउंस जो है वो 93 फ्रैंक्स पर डे के हिसाब से होती है। इसमें आपको जो है वो मतलब जो भी आपकी सैलरी बनती है वो दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेवल अलाउंस इसमें भी है। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो है हमारे पास मोर देन 300 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये जो है एक वाहिद प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो इंटरनेशनली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको जो है वो हर नेशनलिटी के स्टूडेंट को जो है वो एक चांस देते हैं कि वो सन में आए और जो है वो एज ए समर स्टूडेंट काम करें। अब इस समर स्टूडेंट्स प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान हमारे पास बेसिकली मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि एफिलिएटेड मेंबर स्टेट है कि जिसमें हमारे पास पाकिस्तान का और पाकिस्तान में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनका यहाँ के साथ जो है सेंट के साथ जो है वो कोलेब्रेशन होती है। तो इसमें आप जो है वो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप 13 वीक्स तक जो है वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन फिल करते होगा तो आपको बताना पड़ता है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप कितने वीक तक यहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट 2 ईयर का स्टेट्स अगर देखें तो पाकिस्तान से सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। लास्ट 2 to 3 ईयर्स का मैंने देखा था कि मतलब मोस्टली 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें भी यही है कि ये थोड़ी सी कम्पिटेटिव है, लेकिन ये अगेंस्ट ये की बात है कि आप जितनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन आपकी होगी उसमें आपकी सीवी आती है जिसके अंदर आप अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन करते हैं। आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर है आपकी यूनिवर्सिटी की मैटर करती है, और आपके जो एसओपी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इन्वॉल्व होती है कि आपकी सिलेक्शन में जून टू सितंबर जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है वो किस साइकिल में जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और इसका जो समर स्टूडेंट का मेन थीम है वो ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली असाइन कर दिया जाता है। जैसे अभी मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे एक मशीन लर्निंग का जो है वो प्रोजेक्ट असाइन कर दिया गया। तो इसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है और एट द एंड जो है वो आपने उसकी रिपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो अगर फिजिक्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हमारे पास उनके लिए वर्कशॉप वगैरह जो होते हैं तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, पोस्टर सेशंस होते हैं, स्टूडेंट सेशंस होते हैं, उनको आप अटेंड कर सकते हैं। और लेक्चर्स हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फिर ओपन लैब के लेक्चर्स होते हैं जिसमें मशीन लर्निंग के ऊपर और डीप लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। उन सारी चीज़ों को आप जो है वो यहाँ पे इस समर स्टूडेंट के जरिए हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो एक और आती है, ये भी काफ़ी कम्पिटेटिव प्रोग्राम है। इसमें अभी तक जो है वो मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में भी कोई पाकिस्तान के स्टूडेंट देखा नहीं जो इस प्रोग्राम में जो है वो सिलेक्ट हो गए हों। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग इसमें ट्राई करें, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो इसमें हमारे पॉसिबल चांस है कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसमें जो है वो सिर्फ एफिलिएटेड और मेंबर स्टेट को कंसिडर करते हैं, यानी कि जो उनके साथ कोलेबरेटेड कंट्रीज है वहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास भी चांसेस है कि पाकिस्तान से भी कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए अगर उनकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हुई तो। इसका भी सेम वही साइकिल है जो कि समर स्टूडेंट्स का है, सेम टू सेम वही है। लेकिन ओपन लैब जो है वो बेसिकली फोकस करती है आईटी के ऊपर, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के या आईटी के हैं तो ये ओपन लैब का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए है। क्योंकि इसमें जो आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिए जाते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। तो इसमें आपको जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि आपका जो है वो मेजर स्टडी है जो है वो कंप्यूटर साइंस हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आईटी हो। इसका भी शॉर्ट रिपोर्ट जो है वो आपने एट द एंड ऑफ यूर स्टे आपने सबमिट करनी होती है। इसका और जो 2 फुल मंथ होती है 9 वीक्स ही होते हैं कि जो जून टू अगस्त आप जो है वो यहाँ पे स्टे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप भी है। इस इंटर्नशिप का एक जो है वो यही है कि अगर आप आपकी एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी यूनिवर्सिटी है अगर वो आपको फंड कर सकती है, आपको फंड दे सकती है, तो जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में हैं या आप अपने मास्टर स्टडीज़ में हैं और आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आपको इंकरेज करती है कि आप यहाँ पे आके इंटर्नशिप करें एक्सपीरियंस के लिए, अगर वो आपको फंड भी दे रही है तो जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि इसका जो मंथली अलाउंस है वो 1500 फ्रैंक्स है, तो इसमें यहाँ पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इसके लिए और ये अभी भी ओपन है, मतलब इसमें आप किसी भी ड्यूरेशन में आप अप्लाई करते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप अपने प्रेफरेंस के बेस के ऊपर यहाँ पे आते हैं और अपना जो है वो स्टे यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन हमारे पास 1 मंथ to 6 मंथ है, यानी कि अगर आप 1 महीना रहना चाहते हो 1 महीने रह सकते हैं, अगर आप हाफ ईयर रहना चाहते तो हाफ ईयर रह सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात की अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है तो ये पॉसिबल है। और अब जो हम बेसिकली ये सारा बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन था जितने भी हमारे पास प्रोग्राम जो है वो सन जो है
स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब जो है वो बेसिकली इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसीजर बेसिकली क्या है, तो सबसे पहले आपने जो है करियर पेज आना है, जो सेंड का करियर पेज है उसके ऊपर हमारे पास जितने भी ये जो प्रोग्राम्स है वो लिस्ट होते हैं, यानी कि जब एप्लीकेशन ओपन होती है तो फिर आप वहाँ पे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे स्मार्ट रिक्रूटर है। स्मार्ट रिक्रूटर जो है बेसिकली इनका प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो हायरिंग प्रोसेस करते हैं। वहाँ पे आप एप्लीकेशन वगैरह जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसको फिल करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी चीज़ें करते हैं। इसका पहला एक पेज होता है जो कि आप ऑटोमेटिकली फिल भी कर सकते हैं। आप अपनी जो लिंक्डइन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली हुई है या इंडीड के ऊपर आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है उसको आप ऑटो फिल भी कर सकते हैं। आपको बस सिर्फ ऑथेंटिकेशन देनी होती है और वो फिल हो जाता है। फिर उसके बाद मैसेज टू हायरिंग मैनेजर है। ये बेसिकली आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरह है, यानी कि इसमें आप कंपनी को बताते हैं कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट क्या है इस साइड में काम करने का। तो इस चीज़ को आपने बहुत केयरफुली लिखना है कि जिस डोमेन में आपने काम करना है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड डेटाबेस ट्रिगरिंग इस तरह का कुछ था, तो इसको ही मैंने वेल ओरिएंटेड करके आपने जो है वो मैसेज लिखना है हायरिंग मैनेजर को। और वही चीज़ को इसी चीज़ को जहन में रखते हुए फिर मैंने आगे जो क्वेश्चन आने हैं उनको फिल आउट करना है। तो ये चीज़ आपने जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करना है और उसके करस्पॉन्डेंस आपके जितने भी आगे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके सिलेक्शन आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसी की बेस पे करनी है। तो लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था तो मतलब हमारा क्वेश्चन बेस होता है, दो चीज़ें होती है बेसिकली। आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो या तो आपको 100% यही होता है कि आपको वर्ड की लिमिट दी होती है, यानी कि 250 वर्ड्स की लिमिट है, उसमें आपने अपना पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। उसमें आप डिफरेंट पैराग्राफ के ऊपर अपना जो है वो सारा पहले बैकग्राउंड लिखते हैं, फिर आपका करंट रिसर्च इंटरेस्ट लिखते हैं, फिर आपका फ्यूचर जो करियर प्लान है वो आप सारा लिखते हैं। और लास्ट में फिर आप जो है वो इस तरह से लिखते हैं कि अब जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं, जिसमें आप जैसे सेंड में आना चाह रहे हो, तो वो आपका करियर पर्सपेक्टिव से और आपका बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव से वो किस तरह अलाइन करती है। तो ये एक वेल स्ट्रक्चर होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का, वो आप लिखते हैं। लेकिन कुछ जैसे कि सेंड का जो है वो इस तरह से है कि इसमें बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड होता है, यानी कि इसमें आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि वो आपसे पर्टिकुलरली Recording stopped. स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप जो है वो इस मैक्सिमम कैरेक्टर के अंदर जो है वो इस चीज़ का आंसर दे दें, फिर इस क्वेश्चन का आपने इस तरह से आंसर देना है। तो ये आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करें, उसको लिखते रहें, उसको इम्प्रूव करते रहें। आपको ऑलरेडी जो है वो एक पैटर्न दिया गया है, उसकी बेस पर आपने जो है वो करनी है। Recording in progress. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली 3 बुलेट पॉइंट्स है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसका आपने किस तरह से आंसर देना है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है कि जिस डोमेन को आपने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का सिलेक्ट किया है, तो फिर ये जो तीन ही क्वेश्चन है उसको मैंने वेल ओरिएंटेड इसी तरह से करना है, वेल स्ट्रक्चर करना है इसी तरह से कि वो इस क्वेश्चन को 100% सेटिस्फाई करें। अगर आपने फिजिक्स से रिलेटेड कोई डोमेन सिलेक्ट किया है तो आपने इस चीज़ को उसी हिसाब से आंसर करना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि, और ये इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है हर इंटर्नशिप के अंदर या हर स्कॉलरशिप के जो आप देखते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का अच्छा खासा वेट होता है कि बेसिकली वही सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेस करती है। इसके अलावा आपकी सीवी होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसको आपने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो यही है कि आपके पास सीवी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेटर जो कि आप जो है वो इसके अंदर लिखते हैं, बेसिकली मैसेज टू हायरिंग मैनेजर है, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है। और ये सब मेन चीज़ें हैं जो कि इसके लिए जितने भी हम मैंने आपको दिखाए हैं इसके अंदर की कौन कौन से प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मेन जो चीज़ें चाहिए होता है वो यही है कि आपके पास सीवी हो, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हो। अगर आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो ऑफिशियल नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी की पोर्टल आपको अलाउ करती है कि शायद वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो दो ही चीज़ें हो सकती है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर दें और आप अपलोड कर दें, या आप ये भी हो सकता है कि आप जो है वो अपने एचओडी से स्टैम्प वगैरह करा के उसको अटैच करा के, अगर अनऑफिशियल है तो उस चीज़ को आप जो है वो सबमिट करा सकते हैं। इसके अलावा 2 मैंडेटरी रेफरेंस लेटर चाहिए होती है। तो ये रेफरेंस लेटर जो है वो 12 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए, जो कि डेट लिखी होती है कि आपको ये रेफरेंस लेटर कब इशू हुआ है। तो वो चीज़ आपने ज़रूर मेक श्योर करना है कि वो लेस देन 12 मंथ ना हो। और ये रेफरेंस लेटर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही आपको प्रोवाइड करें। आपने अगर कहीं पे इंटर्नशिप किया है और वहाँ से भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप किया या किसी और इंस्टीट्यूशन में इंटर्नशिप किया है 2 महीने या 3 महीने, तो वहाँ से भी आप जो है वो ये रिकमेंडेशन लेटर ला सकते हैं। और इसमें सजेशन यही है कि आप किसी ऐसे से ही अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को
चाह रहे हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लाएं, तो किसी ऐसे प्रोफेसर को टारगेट करें जिनसे आपने काफ़ी मतलब 2-3 कोर्सेज पढ़े हो, आपको सही तरह से जानते हो, तो वो ही आपको बेहतर रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, बजाय इसके कि जिसने आपको सिर्फ एक कोर्स पढ़ाया पढ़ाया ही ना हो, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी में या कैंपस में आप एक दूसरे को जानते हो। तो ये चीज़ थोड़ी होती है कि इन चीज़ों को आपने देखना होता है कि आप जो है वो रिकमेंडेशन लेटर कितनी स्ट्रॉन्ग ले आते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि एक प्रोफेसर ने आपको 3 कोर्सेज पढ़ाए और वो तीनों कोर्सेज में आपने वेल परफॉर्म किया, तो वो आपको बेहतर रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी सजेशन यही है कि जब भी एप्लीकेशन ओपन होती है, तो आपने जो बार बार मैंने जिक्र किया है कि आपने जो डोमेन सेलेक्ट किया है, जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट किया है जिसमें आपने अप्लाई करना है, उसको आपने ज़रूर जहन में रखना है और उसी की बेस के ऊपर जो है वो आपने सारा कुछ आगे फिल आउट करना है। अब स्टार्ट अर्ली और सबमिट 1 वीक बिफोर, ये चीज़ आपने हर हाल में करनी है कि आपने जो एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये एप्लीकेशन अभी ओपन हुई है। लिंक्डइन के ऊपर आपको पता चल जाता है कि अच्छा अभी ये जो इंटर्नशिप है ये इसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपने थोरोली देखना है कि आप एप्लीकेशन जो है वो कितने अर्से में कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे यूग्रेड का अगर आपने से किसी ने अप्लाई किया हो, तो उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा स्टेटमेंट बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी होती है, तो उसमें थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है। तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप जो है अगर एंड में स्टार्ट करेंगे तो फिर आप जो है वो जल्दी जल्दी करेंगे और उसमें कोई क्वालिटी जो है वो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि हमेशा कोई भी एप्लीकेशन से वो आप जो है वो जल्दी स्टार्ट करें, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से कर सकें। और जैसे कि पाकिस्तान में अभी बहुत से अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कभी कभी इंटरनेट के इश्यूज हो जाते हैं, तो बेहतर यही है कि सेफ्टी के लिए कि आप जो है वो 1 वीक पहले ही जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर लें, ताकि बाद में कोई इशू ना हो जाए और आपकी एप्लीकेशन भी जो है वो सबमिट हो जाए टाइम पे। और डेली बेस पे अगर आप नहीं बेस अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको डेली जो है वो एप्लीकेशन को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जल्दी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो आप वीकली जो है वो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर दें और इसके अंदर जो आपने जितने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। अब ये जो आपका सर्न का जो एप्लीकेशन पोर्टल है, वो बेसिकली 1 टाइम एप्लीकेशन है, यानी कि एक ही दफ़ा जो है वो आप सारा कुछ लिखते हैं और एक ही दफ़ा फिल करते हैं और इसी के ऊपर जो है वो आप डायरेक्टली सबमिट करते हैं। यानी इसमें सेव का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आपने आज थोड़ा सा लिखा और कल दोबारा आपने उसको स्टार्ट करना है तो फिर वो सेव नहीं रहती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो पहले पेज पे जो है वो डमी डाटा डाल दें या डमी डाटा ना डालें, रियल डाटा डाल दें और नेक्स्ट पेज पे जाए। नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपको प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा आप अपने वर्ड्स के डॉक्यूमेंट में कॉपी कर दें। वो सारी चीज़ें आप अपने पास लोकल डायरेक्टरी में रख लें। उसके आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आपको कितना टाइम लगेगा, कितना कुछ आपने उसको आंसर वगैरह लिखना है। उसके बाद जो है वो सारा कुछ आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिख लेंगे, तब जाके एक ही दफ़ा आप जो है वहाँ पे पेस्ट कर दें, फिर उसके बाद सबमिट कर दें। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अदरवाइज ये होगा कि आपके बार बार जो है वो लिखते रहना पड़ेगा और जो है वो आपकी प्रोग्रेस जो है वो सेफ नहीं रहेगी। ये एक सजेशन है। और जो दूसरी चीज़ है रिकमेंडेशन लेटर के लिए, कुछ टाइम हम ये करते हैं कि आप लास्ट वीक में अपने प्रोफेसर को मेल करते हैं कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए या इस तरह से, तो वो अच्छी अप्रोच नहीं होती है। आप काफ़ी टाइम पहले ही बता दें कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो इस तरह से ताकि वो आपको टाइमली प्रोवाइड कर दें और बाद में आपको जो है वो इसका इशू ना हो। और पासपोर्ट जो है वो मुझे अभी सही तरह याद नहीं है कि एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आई गेस नहीं है एप्लीकेशन के लिए, लेकिन जाहिर बात है अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको पासपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं ड्यूरिंग यूर अंडर ग्रेजुएट स्टडी, तो पासपोर्ट आपके पास एक बेसिक चीज़ है जो आपको हर हाल में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो जितने भी आपके प्रीवियस सेमेस्टर हो चुके हैं उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आप ला के रख लें। अगर एक इंटर्नशिप से आप सेमेस्टर आपके गुजर चुके हैं, तो बेहतर ये है कि आप एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपने डिपार्टमेंट से ला के अपने पास रख लें, ताकि आप जो है वो किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। तो ये मेरे कुछ सजेशन है किसी भी इंटर्नशिप के को अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है बेनिफिट्स एंड लाइफ एक्सटेंड, तो ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए है कि बेसिकली फुली फंडेड है, इसमें आपको जो है वो कोई भी अपने तरफ से बेसिकली पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस आपको जो मिलती रहती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल समर प्रोजेक्ट जो है वो आपको असाइन कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे
आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो बाद में जाके कहीं पे डिप्लॉय होगा, तो आपको ये फील आएगा कि अच्छा जो काम मैं कर रहा हूँ उसने कहीं पे जाके इम्प्लीमेंट डिप्लॉय होना है। तो ये आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप जो है वो अच्छा एक बेहतर से बेहतर काम करें, ताकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो आपका प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए। तो इस तरह से है। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एनोमली डिटेक्शन इन सीएमएस वेब सर्विसेज है। और अभी जो है वो मैं मॉडल इवेल्युएशन फेजिंग के ऊपर, यानी कि डिफरेंट मॉडल जो है वो ट्रेन कर रहे हैं और इसके ऊपर हुआ है। और इसके अलावा आपको जो है वो साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बेहतर आइडियाज होगा। इसके अलावा आपको जो है वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और एक्सलेंट वर्क प्लेस है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोलेब्रेशन देखने को मिलती है, और यहाँ पे एक्सलेंस माइंड यहाँ पे है, उसके उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे कोई भी आपको जो है वो जिस जो भी आपके क्वेश्चन है उसका आपको बहुत रिस्पेक्टफुली आपको आंसर करते हैं। यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे एक लिख रहेगा कि अगर अगर आपको एक चीज़ नहीं आती तो फिर आप मतलब ये आपने बहुत ही कोई लेम क्वेश्चन किया है, इस तरह से नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको फेयरली ट्रीट किया जाता है, यानी कि कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अगर आपको चीज़ नहीं आती तो फिर आप जो है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होती चीज़ें। और फ्लेक्सिबल ऑफिस टाइमिंग होती है, यानी कि 8 घंटे का हमारे जिस तरह पाकिस्तान में 9 to 5 है उसी तरह, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि ये सुपरवाइजर ओरिएंटेड है। सुपरवाइजर बेसिकली जिस तरह से आपको लेके चलना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मतलब ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है, अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा एडवांस लेवल का है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर इतने एडवांस लेवल का नहीं, इंटरमीडिएट और बिगनर लेवल का है तो फिर आपको जो है वो अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। उसके अलावा गुड सैलरी यहाँ पे जो है वो 93 फ्रैंक्स पर डे के हिसाब से काफ़ी बेहतर होती है। यानी कि आप अच्छा खासा उसमें आपका जो रेंट होता है, इसके अलावा जो ट्रैवल आप स्विट्जरलैंड और फ्रांस के अंदर करते रहते हो वो भी अच्छा खासा आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर। आपके अकोमोडेशन हो गया, फूड्स वगैरह हो गया, वो सारा कुछ इसी में मोर देन इनफ होता है, उसमें आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो प्रोफेशनली आप जो है वो किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, एकेडमिकली आप जो है वो किस तरह से एक्सपीरियंस जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी हमारे पास जो वीकेंड्स पे ट्रिप्स वगैरह होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। यानी कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप जो है वो दोबारा स्कूल लेवल पे चले जा चुके हैं और आप सुबह बैग उठाने और जाने ऑफिस जाने वापस आना है, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे उधर बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो इस तरह भी है। बाकी वीकेंड्स पे तो जाहिर सी बात है आपके पास अपना सारा टाइम्स होते हैं, तो उसमें आप जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के अंदर जितने भी एरिया है उसमें आप घूमने फिरने जा सकते हैं। और आप अगर आप लेस देन 25 है तो इसमें आपको और भी जो आपके ट्रेवल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो फिर आप काफ़ी इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो ये मेरा प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल है लिंक्डइन के ऊपर, आप जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने पर्टिकुलरली किसी एक एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, जब एप्लीकेशन ओपन होगा अगर वहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि जस्ट आपने मेंशन करना होता है कि इस सेशन में आपका सेशन अटेंड किया था और इसमें मुझे ये चीज़ कन्फ्यूजन है। इवन अगर आप आज भी यहाँ पे टाइम नहीं होता अगर आपके क्वेश्चन को आंसर करने में, तो आप जो वो सिंपली मुझे लिंक्डइन पे मैसेज भेज दीजिएगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में मज़ीद जानना है या इस चीज़ के बारे में मज़ीद मेरे क्वेश्चन है, तो वो चीज़ हम वहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा गिटहब का है यहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट के ऊपर कोलेबोरेशन कवर करनी है या और मेल है, दोनों ही मेल एक्टिव है, इसके ऊपर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये रेफरेंसेस है जिसमें डिफरेंट लिंक्स है, यहाँ से मैंने ये सारा कंटेंट लिया है। उसके अलावा जो मेन कंटेंट है वो यही है आपके पास जो है वो करियर वाला जो थर्ड बुलेट पॉइंट है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो सारा का सारा जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें आपको जो है वो उसको देख सकते हैं कि किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए आप एलिजिबल है और कौन सा आपको सूट करता है और किस ड्यूरेशन में आप जो है वो यहाँ पे आना चाहते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जितने भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो कवर हो चुके हैं, और जो मेरे कुछ सजेशन थे और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा। Thank you so much, Nasir. That was such a wonderful session. So I would like to request if you have any questions, kindly drop it in the chat box, or you can just raise your hand and turn on your mic to ask the question. It will be better if you turn on your mic and ask question directly.
Nasir, could you please drop those links in the chat box if you can, or you can just share it with me later on. I will drop in the community. Yeah, sure. I will share the slide as well, and I can share you all this link as well. Sure. There's one question in the chat box. Is it mandatory कि हमारी university इस program से affiliated हो, or we can apply on our own? या आई गेस आप लोगों ने मीटेक या माईटेक है जो कनाडा में अपॉर्चुनिटी थी उसको आपने रिसेंटली कवर किया होगा, राइट? Yes, we have covered that. यस, तो उसमें बेसिकली ये था कि उसको भी मैंने एक्सप्लोर किया था। तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो लिस्ट किए हुए थे कि उन्होंने वो बेसिकली ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो उस चीज़ में अब यहाँ पे सर में इस तरह से नहीं है। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का किसी के साथ कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अप्लाई करना होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें इस तरह की कोई नहीं है। लाइक मैं कायदम यूनिवर्सिटी से हूँ। इससे पहले जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे वो पियास यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट होते थे। अभी जो दूसरा स्टूडेंट है वो नस से है। इससे पहले जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए वो यूटी लाहौर से भी हैं। तो इस तरह से नहीं है, मतलब आप जैसे अप्लाई करने हैं इसमें। Oh, yes. There is one more question. Would you mind sharing your profile, like when you were applying, whether it was your project or any internship experience that made your application stand out, or what tips you would like to give to the audience? बेसिकली जो मेन फोकस था वो मैंने उसके ऊपर किया था। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया था। और बाकी सीवी मेरी भी उस टाइम पे आई गेस मैं थर्ड ईयर में था। तो उसमें मेरी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन जितने कोर्सेज मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कोर्सेज थे और बाकी चीज़ें था वो था। और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरे पास एक ही था उस टाइम पे, जो कि नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स में मैंने किया था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न। तो वो चीज़ था। और इसके अलावा मैं शेयर अभी मेरे पास, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें अपडेटेड हुए हैं और मेरे डिवाइसेस भी चेंज हुए हैं। तो मेरे पास इस टाइम पे मौजूद नहीं है। लेकिन जिसने अप्लाई करना है अगर वो बाद में मुझे लिंक्डइन पे मैसेज शेयर कर दें कि ये चीज़ मुझे देखनी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो मैं आई एम हैप्पी टू शेयर विद हिम और हर। Thank you so much. And also, you mentioned like the requirement documents required CV as well. So, what do you suggest? Like, how should we build our CV? Like, all our ATS, like it can be screened because we know the resumes are scanned using ATS words. So, how did you build that? Can you guide us on that as well? बेसिकली मेरे उस टू बी ऑनेस्ट मेरी उस टाइम पे जो सीवी वगैरह थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेन चीज़ मेरे पास वही था कि जो एप्लीकेशन प्रोसीजर था और रिकमेंडेशन लेटर से। लेकिन यस, आपने जो काफ़ी सारे एटीएस कोर्स जिसकी अच्छी खासी है उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसमें यही होता है कि आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस डालने होते हैं। जैसे कि हम जो है वो 3-4 सीवी रखे होते हैं, एक ही सीवी नहीं रखी होती जिसके ऊपर हम हर जगह उसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब अगर आप सेंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसमें आपने जो है वो अपने जो रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस है, जैसे अगर आप मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट है या आप या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो तो जो कोर्सेज रिलेटेड अगर आपने कोर्सेरा वगैरह से किए हुए हैं तो वो चीज़ आप मेंशन करें। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह अपने ओन पे किया हुआ, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ था मैंने अपने एंड पे किया था, वो हाउसिंग प्राइस प्रिडिक्शंस था। वो बेसिकली मैंने अपने एंड पे किया था, वो आप मेरे गिटहब पे भी देख सकते हैं। और उसको मैंने मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम से उसको ट्राई किया। तो उसमें जो एक मेजर फाइंडिंग थी वो यही थी कि उसकी जो प्रिडिक्शंस की जो जैसे हमारे पास हाउस होता है उसकी एरियाज होते हैं, यानी कि इसके अंदर कितने बेडरूम्स है और वो सारी चीज़ें मैं जब मैं अपने मॉडल्स को देते तो उसकी प्रिडिक्शन और ज़मीन.com की प्रिडिक्शन एग्जैक्टली मैच कर रही थी। तो इस तरह के अगर आपके पास इस तरह के प्रोजेक्ट्स है जो कि वाकई आपको लगता है कि स्टैंड आउट कर सकते हैं तो फिर उसको भी आप लिस्ट कर सकते हैं। जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हुए अपने एंड पे या सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो भी किए हुए हैं तो वो आप लिस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो आप लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑनर्स एंड अवार्ड्स वगैरह आप जो है, जैसे मेरे पास जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप के अवार्ड है, एकेडमिक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है डिफरेंस आपको यूनिवर्सिटीज़ में अवार्ड्स मिलते हैं, तो उन चीज़ों को भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है कि जितना कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना कुछ है उसको आपने वेल स्ट्रक्चर करके जो है वो आपने सीवी के अंदर रखनी है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपने जो है वो फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग जो है वो सीवी बिल्ड करें। सीवी आपकी अपनी एक्सपीरियंस और अपनी
जो काबिलियत है उसकी बेस पर ही बिल्ड होती है, यानी कि इसको कोई अलग से टेक्निक हम आई डोंट थिंक कि इस तरह से कुछ होगा। जो कुछ आपके पास है वही चीज़ आप प्रेजेंट करते हैं और उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। That you mentioned a very good point. And also, like, I would like to ask you about letter of recommendations. Like, you asked for like from the internship position, or you asked your professor to write, or did you write and get it signed, or like, can you guide us about the content of the LOR as well, like what was mentioned? And yeah, so all about that. आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चंस, कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि रिकमेंडेशन लेटर के लिए तो किसी। जी, मैं पूछना चाह रही थी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अपनी इंटर्नशिप वाली पोजीशन से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है रिक्वेस्ट किया था, या डिड यू आस्क योर प्रोफेसर टू राइट फॉर यू, और या या फिर ऐसे भी होता है काफी यूनिवर्सिटीज आपको कहती हैं कि आप खुद एलओआर लिख लें एंड देन वी विल गेट इट जस्ट साइन फॉर यू, सो या दैट एक्चुअली दिस इज दैट्स नॉट अ बेटर अप्रोच, यू नो। आपको इस तरह से करना है कि आपने ऐसे प्रोफेसर को टारगेट करना है, जो कि मैंने अपने इस सेशन में भी मेंशन किया, कि वो ऐसे प्रोफेसर को आप कांटेक्ट ना करें कि जो आपसे कहें कि आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे दें, अब मैं खुद उसको लिख के दे दूं, उसके बाद वो साइन करे। ये कोई बेटर अप्रोच नहीं है। अगर जैसे आप अपने जो प्रोफेसर है उसके आप जो है वो उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि आप किस तरह के जो प्रोफेसर है उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं। जो मेरा केस था उसमें जो मेरा जिसके साथ मैंने इंटर्नशिप किया था समर में, वो हमारे यहाँ एक एज ए विजिटिंग फैकल्टी कोर्स भी पढ़ाते थे। तो इस तरह से तकरीबन एक वन समर एंड एक जो है एक सेमेस्टर, यानी कि तो इस तरह करके मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मैंने एक अपने इंटर्नशिप से लिया था ताकि वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आ जाएं, और एक मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लिया था, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। तो दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से मैंने दो डिफरेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिया था। तो इस तरह से जो है वो आप लेते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप किसी ऐसे प्रोफेसर को टारगेट करें जो आपसे ये ना कहें कि आप मुझे जो है वो लिख के दे दें, मैं आपको साइन करके दे दूंगा। जाहिर सी बात है, जब आपने सिर्फ उनको मेल में यही लिखना है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो वो फिर जिस तरह से रिस्पॉन्स आता है उसी तरह से आप जो है वो उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कंसिडर करें कि अच्छा, अगर आपने मैंने खुद ही लिख के देनी है और मैं साइन करके देना है, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी एज कम्पेयर टू द वन कि सुपरवाइजर खुद आपको अपने एंड पे दे रहे हैं। सो आपने मेंशन किया कि आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एलओआर रिक्वेस्ट किया था, सो लाइक क्या उन्होंने आपको कोर्सेज पढ़ाए हुए थे उसकी बेस या के ऊपर उन्होंने आपके था, या फिर इट वाज जेनेरिक वन? इट वाज नॉट जेनरिक वन, बिकॉज मैं क्योंकि क्लब लीड भी था, इसके अलावा मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज भी थी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर। इसके अलावा उन्होंने हमें कोर्सेज भी पढ़ाए हुए थे और इसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। उन्होंने मुझे कोर्स पढ़ाया था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो उसमें मेरे तकरीबन 94% थे आउट ऑफ 100। तो उस तरह से जाहिर सी बात है, आप किसी ऐसे प्रोफेसर को टारगेट करेंगे जिसके साथ आपने अच्छा कोर्स पढ़ा हो, जिसके साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और जो आपको जिन्होंने आपकी अचीवमेंट्स वगैरह देखी भी हो। पर इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग कंपटीशन में भी मैं गया था, जो एक यूईटी टेक्सला के अंदर था, और नमल के अंदर भी एक हुआ था। तो उसके अंदर हो कोई पोजीशन तो हम हासिल कर नहीं चुके थे, लेकिन ये था कि इसमें हमने एटलीस्ट पार्टिसिपेशन की थी, और उसमें जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आइडिया था। तो उनको एटलीस्ट ये चीज़ आइडिया होता है कि ये बंदा जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और इन चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, और इनकी ये एक्सपर्टीज है और ये जो है एक्सपीरियंसेस है, तो उस बेस पे वो आपको प्रोवाइड करते हैं। So your letter of recommendation was a mix of your academic plus your extracurricular activities, yeah, या right? एग्जैक्टली जो मुझे डिपार्टमेंट से मिला था उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी, और जो इंटर्नशिप पे किया था वो मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड माय वर्क एथिक, इस तरह से। Okay, so there is one more question in the chat box. Are there any degree awarding programs, or these are just research programs? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें शायद मैं मेंशन करना भूल गया कि CERN जो है वो कोई एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें डिग्री अवार्डिंग चीज़ें नहीं है। मैंने एक चीज़ मेंशन किया था कि जो डॉक्टरल प्रोग्राम्स है उसमें बेसिकली ये होते हैं पाकिस्तान के लिए, कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आप जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जो है वो पीएचडी की मतलब हो जाती है। लेकिन उसकी भी मतलब अभी मैंने चेक किया था इस कंटेंट को बनाने से पहले, तो इसमें पाकिस्तान के लिए
एज सच कोई वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट वगैरह नहीं थे डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए। तो ये बेसिकली आपके एक्सपीरियंस के लिए, आपके इंटर्नशिप के लिए है। और इसमें ये क्वेश्चन इसलिए भी अराइज होती है कि कुछ जो हमारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होती है, और दूसरे हमारे पास जो है कुछ और एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। तो उसमें बेसिकली आपके क्रेडिट और जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आपने एक सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में लगाए हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भी काउंट करते हैं, आपकी जो होम यूनिवर्सिटी उधर भी काउंट होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि आपने जो है वो अपनी डिग्री भी कंटिन्यू रखनी है और आपने ये इंटर्नशिप भी लेना है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है, आपका कैंपस आपको सपोर्ट करती है, तो फिर आपको जो है वो कुछ चीज़ों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं। अगर आपको कोई एग्जाम के इशू है, आपका कोई सेमेस्टर का ड्यूरेशन का इशू है, तो वो आपको कंपेंसेट कर देती है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट कहती है कि नहीं, हमारा ही कोर्स यहाँ पे पढ़ना है, ये इंटर्नशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें इश्यूज आती हैं। लेकिन इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है कि आपको डिग्री जो है वो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक्सपीरियंस के लिए है। There's one more question in the chat box. It's asking like there are opportunities available for social science students as well, or these are just technical opportunities, or what are other opportunities available for social science students? सोशल साइंस के लिए आई गेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि अब जो समर स्टूडेंट्स प्रोग्राम है ना, समर स्टूडेंट्स प्रोग्राम के अंदर जो है वो टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें आपने जो है वो, या आप फिजिक्स के अंदर कोई सिमुलेशंस कर रहे होते हैं, या कंप्यूटर साइंस के अंदर आप कोई और प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, कोई रोबोटिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उसमें बेसिकली आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। पाइथन जो है वो यहाँ पे तकरीबन सारे स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो उसमें तो सोशल साइंस वाले आई गेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि ओपन लैब तो पर्टिकुलरली ही कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। समर स्टूडेंट्स में भी आपको जो है वो चीज़ें कुछ ना कुछ आपकी बेहतर होनी चाहिए। आपके मैथ, स्टेटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ये हमारे पास एक है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनमें से किसी चीज़ में फिट होती हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, लॉ है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक है, अकाउंटिंग है, लाइब्रेरी है, और इसके अलावा एजुकेशन भी है, ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन, साइकोलॉजी, ये मेरा ख्याल से सम हाउ मैनेजमेंट साइंस और सोशल साइंस के इस तरह से क्रॉस है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। और नासिर, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब वो किसी डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, बट लाइक उन्होंने अपने ओन पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो उनके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, या फिर आपका अंडर ग्रेड या ग्रेड स्कूल शुड बी इन लाइक आईटी फील्ड और लाइक अदर देन दीज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स? आई गेस इसमें आपकी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, यानी कि वो ये चीज़ देखते हैं कि आप जो है वो इसमें किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर आप जो हैं वो फॉर एग्जांपल आप इनरोल्व हैं लॉ लॉ में इनरोल्व हैं, ठीक है, जैसे कि एलएलबी में इनरोल्व हैं। आप एलएलबी में इनरोल है, लेकिन आपकी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज अच्छी खासी है। लेकिन जो है वो यहाँ पे जाहिर सी बात है उस चीज़ को देखेंगे ना कि आप एक लॉ का स्टूडेंट्स आके मतलब यहाँ पे इस चीज़ में कैसे काम कर रही है। तो इसमें आप एजुकेशन मेंशन करते हैं, तो एजुकेशन मेंशन करते हुए आपके पास जो चेक बॉक्सेस बने होते हैं, जो ड्रॉप डाउन बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी जब आपने डोमेन सेलेक्ट कर लिया तो फिर वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वो कट ऑफ हो जाते हैं बाकी जो फील्ड्स वगैरह हैं। तो इसमें भी शायद ये सारी चीज़ें हैं कि जब आप डोमेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर डोमेन सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट एजुकेशन वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती है कि आपका जो फील्ड है वो कौन कौन से होनी चाहिए। तो वो चीज़ तो ऐसी नहीं है कि आपका डिग्री कुछ और है लेकिन आप अप्लाई किसी और चीज़ में कर रहे हैं, तो ये चीज़ वो भी नहीं होती ना। मतलब अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो फिर आपने एक टेक्निकल प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर वो आपका करियर पर्सपेक्टिव और इस एक्सपीरियंस से कहीं भी मैच नहीं करती है। Yes, I completely agree with you. And there's one more question in the chat box. Can recent graduates apply, or do we have to be enrolled in bachelor or graduate program? यस, बेसिकली जो आपका बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है ना, उसमें आपका इनरोल रहना ज़रूरी होता है। यानी कि आप जो है जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो या जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो, तो आप जो है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो।
मेरे केस में मैं यही था कि मैं इनरोल था अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद जो वो मैंने ग्रेजुएट हो जाना है, यानी कि अब जो दूसरा स्टूडेंट जो यहाँ पे आए हुए हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन समहाउ जिस टाइम पे वो अप्लाई कर रहे थे तब तक वो एनरोल थे। तो ये चीज़ होती है कि आप मतलब उसमें मई 2000 तक आप जो है अगर ग्रेजुएट नहीं होते, जब आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे कि लास्ट डेट हमारे पास जो है, आपकी स्टार्टिंग डेट जो है वो जून जुलाई है, और आप ग्रेजुएट हो रहे हैं मई में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है मतलब आप मई में ग्रेजुएट हो चुके हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेकिन आप जो है अगर रिसेंटली ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं खुद एक कह सकता हूँ कि एक हिसाब से मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ। Okay. And also, like, I would like to ask, like, what's the selection ratio from Pakistan? मतलब हर साल कितने students पाकिस्तान से select होते हैं, और ये amount increase कर रही है या decrease कर रही है? Like, what have you seen from the past years too? यस, ये अमाउंट जो है वो डिक्रीज कर रही है आई गेस, क्योंकि लास्ट 2017 में था या 19 में था, मुझे असल में इनकी स्टेटिस्टिक रिपोर्ट्स मिली नहीं। मैंने उसका काफ़ी ट्राई किया कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँ, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर्स में मैंने लिंक्डइन वगैरह पे और बाकी रिपोर्ट्स जो मैंने मुझे मिले थे उसमें ये था कि सिर्फ 2 ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इट्स डायरेक्टली आई गेस इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द बजट दैट पाकिस्तान प्रोवाइड टू सर्न। यानी कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का जो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है उनके यहाँ इसके साथ कोलेब्रेशंस होती है। तो जितना पाकिस्तान बजट एलोकेट करती है सर्न को, तो उसी हिसाब से मेरा ख्याल पे यहाँ पे शायद माइट पॉसिबल, आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि मैं इस अपोजिशन में नहीं हूँ कि मुझे इस चीज़ का आइडिया हो। लेकिन ये एक फैक्टर है कि जिस तरह आपको आइडिया होगा, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप था, तो जब आपको बजट एलोकेट होती है तब मिलती हैं, अगर जब बजट एलोकेट नहीं हुआ है तो अभी वो ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह के सिचुएशंस होते रहते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर कितना कुछ होता है, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और कुछ टाइम तो ये भी होता है ना कि आप ये सिलेक्शन क्राइटेरिया इस तरह से ये होती है कि कुछ ईयर बिल्कुल स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाई करते हैं वो पहले राउंड में ही कट ऑफ हो जाते हैं। यानी कि जो पहला राउंड की जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे सर्न की जो टैलेंट एक्विजिशन टीम से वो करती है। यानी कि जो सर्न के एक्सपर्ट है वो देखती है कि कौन से स्टूडेंट में सेलेक्ट होना है। तो उसमें ही कुछ मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट कुछ 1-2 साल में कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से सिलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये इशू भी होता है कि समटाइम आप पहले राउंड में ही सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से भी सिचुएशंस है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कुछ 2 स्टूडेंट में होते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस आए तो माइट पॉसिबल उससे भी ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएं। Okay. And there is one more question in the chat box. Can Master of Computer Science students can apply? या यू कैन अप्लाई। जैसे कि जितने भी हमारे पास प्रोग्राम्स है जो बैचलर और मास्टर्स के ही हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने देखे हैं कि जो एशियन कंट्री से आ रहे थे तकरीबन वो बैचलर्स के थे, लेकिन यूरोप के जितने लोग थे मोस्टली मोस्टली जिन जिन लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है वो मास्टर में एनरोल थे और वो समर स्टूडेंट है यहाँ पे। तो सो यू कैन अप्लाई। I have request all the questions in the chat box. Like, if you have still any questions, please drop it in the chat box, or like turn on your mic and you can ask. Also, Nasir, I had one question. Like, when we were going through the slides, I saw one point where you mentioned like reaching out to the hiring manager. Can you please elaborate on that? Like, how would we get to know about that, and how should we हायरिंग reach out मैनेजर, to them? राइट, मैसेज टू द हायरिंग मैनेजर आई गेस। जस्ट दिस वन, राइट, द थर्ड पॉइंट। Yes. ओके, सो बेसिकली मैसेज टू हायरिंग मैनेजर जो है वो बेसिकली आपका पहले पेज पे आता है। यानी कि उस पेज के ऊपर आपने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि ये स्मार्ट रिक्रूटर्स एक वो है, इनका पोर्टल है, उसके थ्रू ये जो है वो सारा एप्लीकेशन प्रोसेस करता है। तो उसमें पहले आप अपने जो है वो फिल आउट करते हैं, लिंक्डइन या इंडीड के ऑटो फिल कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपका मैसेज टू हायरिंग मैनेजर है। उसमें बेसिकली जो मैंने लिखा था, लेट द कंपनी नो अबाउट योर इंटरेस्ट इन वर्किंग देयर, उसमें मैंने अपना एक हिसाब से पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहाँ पे लिखा था। यानी कि अब मेरी इस टाइम पे मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं इस टाइम पे क्या स्टडी कर रहा हूँ, और मेरे
इंटरेस्ट किस में है, मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किस में किए हुए हैं, मैंने कोर्सेज वगैरह किस में किए हुए हैं, और मैं सेल में आके काम क्यों करना चाहता हूँ, और ये मेरा आगे फ्यूचर में क्या हेल्प कर सकती है। तो ये कुछ 5 6 7 पॉइंट्स थे, इन सबको मैंने अलाइन किया था, और इसके बाद जो है वो मैंने ये सारा मैसेज टू हायरिंग मैनेजर लिखा था। और यही चीज जो आपने लिखी है ना इस मैसेज टू हायरिंग मैनेजर में, यही जो है वो आप दोबारा आगे जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसी में आप जो है वो उसी को चेंज करके वही लिख सकते हैं दोबारा। तो आगे फिर आपसे वही चीजें ही पूछ रही होती है कि आपने बेसिकली आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके फ्यूचर गोल क्या है, आपने इस डोमेन में क्यों अप्लाई किया है, तो वो सारी चीजें। तो ये एक बेसिकली मैसेज टू हायरिंग मैनेजर एक जनरल सा है, उसमें आप सारी चीजें लिखते हैं, यानी कि हम उनको बताते हैं कि अपने बारे में बताते हैं, और वो सारी चीजें जो आपने अपने सीवी में लिखी हैं एज एक्सपीरियंस और एजुकेशन में डाली, वो सारी चीजें लिखते हैं। तो फर्दर जो आपके आगे क्वेश्चन आते हैं उसमें आप उसको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं और मोर इनहेंस करके आप उसको लिखते हैं। Master, like after the initial shortlisting, they call you for the interview, right? नो, बेसिकली वहाँ पे लिखी हुई है, जो आपका स्मार्ट रिक्रूटर है उसमें आपका वो पूरा प्रोसेस लिखते हैं। स्मार्ट रिक्रूटर सिर्फ मेरे ख्याल से सेंट क्या नहीं, और भी सारे बहुत सारे कंपनीज होंगे वो यूज़ करते होंगे। तो उसमें बेसिकली जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस भी है। तो जो ओपन लैब है और समर स्टूडेंट प्रोग्राम है उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन है। एक दफ़ा आपकी सिलेक्शन हो गई, आपको मेल आ गया है कि आपका जो है वो सिलेक्शन हो चुका है, आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो उसमें फिर आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनको रिटर्न करनी होती है, फिर आप जो है वो कंफर्म हो जाते हैं कि आप जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद आपको और कोई प्रोसेस नहीं, फिर आपने जो है वो वीज़ा वगैरह के लिए वीज़ा वगैरह की जो प्रोसेस है वो आपने स्टार्ट करनी है। लेकिन जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है और टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए या टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली इंटरव्यू होते हैं। Okay, okay, I got you. Like for some programs there are interviews और कुछ programs के लिए interviews नहीं है. In which यस, you got selected, you didn't go through the interview process, right? यस, अगर आपको एक दफ़ा मेल आ गया, मेल में बेसिकली वो आपको बता देते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। अगर जाहिर सी बात है अगर आपका इंटरव्यू फेज रहता है तो वो आपको मेल में इन्फॉर्म कर देंगे कि बेसिकली आपका अभी इंटरव्यू फेज स्टार्ट होगा। Okay, okay. Thank you so यस। much. And I think so, like we have addressed all the questions. And regarding the slides, I will ask from the Nasir and I will drop it in the WhatsApp community. You can get from there. And I guess that's all it for today. And yeah, thank you so much, Nasir, for joining us today and for all Thank you your so much. inspiring Thank you so words and much. Thank you to your exciting. whole team for providing this opportunity and platform to give awareness about this. क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो होप सो आप लोग ये अप्लाई करें और नेक्स्ट ईयर से आप लोगों में से कोई यहाँ पे हो और अगेन कोई ये सेशन कंडक्ट कर रहा हो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए भी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you. And before we wrap up, I would like to encourage you all to stay connected on our social media platforms. We have dropped our WhatsApp community, LinkedIn, and all links in the chat box. You can join from there. And additionally, before wrapping up, I would like to mention one thing. For all those individuals who are interested in joining us, we have some internship openings. And we are having 4 internships openings. So you can reach out to our LinkedIn and find your respective field and you can apply through the Google form from there. And thank you so much everyone for joining today, and let's keep the momentum going, and I look forward to see you all in the next sessions. And yeah, thank you so much and have a wonderful evening. Goodbye. Allah Hafiz.